Hello everyone, how are you all? This is Dr. Neha welcoming you once again to my channel. This video today is dedicated to the history of English literature as the NTA UGC NET exam December 2024 just passes away. It's time to kickstart our preparation. ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल किन के लिए है? दिस वीडियो is basically for NTA UGC NET aspirants first. Second, किन के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है? ये वीडियो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश एक मेंस की तरह है, सब्जेक्ट की तरह है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है और साथ ही साथ हेल्पफुल हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने मास्टर्स कोर्स में, इंग्लिश मास्टर्स के कोर्स में रीड कर रहे हैं. सो दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Today, part 1, and later on we will discuss about the other ages in part 2. So, part 1 basically will talk about the history from very root up till the restoration age. देखिए, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम के पास्ट एक्सपीरियंसेस से एक चीज तो हम सब ने बहुत अच्छे से सीख ली है. व्हाट्स दैट? क्रोनोलॉजी. सो क्रोनोलॉजी के लिए हिस्ट्री को समझना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जिस स्टूडेंट को एज की हिस्ट्री मालूम है उसके लिए ऑथर की क्रोनोलॉजी, ऑथर के वर्क्स के क्रोनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना या लर्न रखना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं रह जाता है. सो दिस वीडियो इज truly going to help you a lot in attempting your exam, in knowing history. लेकिन मेरा मेन एम आज इस वीडियो को डिलीवर करने का क्या है? The main aim here is to help you people get rid of the fear of history of English literature. जब भी बात हिस्ट्री की आती है, स्टूडेंट्स आर जनरली स्केर्ड. अरे अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. If you study history like a story, like you develop comfort level of a story with history, the facts, the ages, the people, the kings and the queens are not going anywhere from your mind. They'll always stay with you. So let us begin the story of history of English literature without wasting time. And this video is also a sort of a demo that how I teach. And if you want to subscribe for my online or offline course dealing with the NTA UGC NET exam, you can let me know in the comment section below. इस वीडियो को आप एक डेमो की तरह भी ले सकते हैं कि हम हिस्ट्री को कैसे परस्यू करेंगे. इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम, नेट का एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट हिस्ट्री बट इट इज मेजरली अबाउट हिस्ट्री बिकॉज ऑल द ऑथर्स they precede or succeed what I am going to teach today. So take it as a demo, and for any query or a specific video that you want me to upload and talk about, if you have any query related to that, you can let me know. So without wasting time, let us start. अगर बेटा हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो first age, I have divided the history, not I but everybody has divided history into ages. हमने हिस्ट्री को ages में डिवाइड किया है, बट जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, we will not skip even a single decade in that. हम एक decade को भी skip नहीं करेंगे and we will talk about each and every age, each and every सेंचुरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बर्ड आई व्यू से आज हम हिस्ट्री को व्यू करेंगे. सो द फर्स्ट एज दैट कम्स in our discussion, in our opening discussion of history of English literature is the Anglo-Saxon age. First is, keep a pen and paper with you. Anglo-Saxon age.
here in this video, it is not possible that I talk about the major works, the major trends of the present age, because we are viewing history from a very bird eye view. तो आज हम एक कहानी समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली है क्या. तो एंग्लो सैक्सन एज, as the name of it suggests, basically deals with, it's an old English phase where English as a language, English as a literature existence में नहीं थी, और अगर थी भी तो as a dialect थी, as a बोली थी जो कि एक short tribe बोलती थी. See, Anglo-Saxon age gets its name from two dominant tribes, Angles and Saxons, who dominated from 450 to 1066. हम इसे एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड की तरह व्यू करते हैं, जहां पर इंग्लिश जो कि एक ट्राइबल लैंग्वेज थी, इंग्लैंड के पीपल की लैंग्वेज थी, वो कैसे ग्रो कर रही है. क्योंकि हमें इंग्लिश लिटरेचर की बात करनी है तो वी हैव टू कीप इन माइंड द वेरी ग्रोथ ऑफ आवर कंसर्न्ड लैंग्वेज एज वेल. तो यहाँ पर इंग्लिश एक ट्राइबल लैंग्वेज की तरह थी कि इंग्लैंड एक नेशनल आइडेंटिटी के साथ नहीं था. इस दौरान लिटरेचर भी जो थी वो रिटन फॉर्म में नहीं थी, जैसे कि आप लोग ईयर्स से देख ही सकते हैं. इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज इस दौरान रिटन फॉर्मेट में नहीं थी. जो भी लैंग्वेज थी, दैट लैंग्वेज वाज इन ओरल फॉर्म एंड इट बिलोंग टू द पीपल ऑफ सर्टेन ट्राइब्स, जो कि थे एंगल्स, एंजल्स, सेक्शंस, जूट्स, स्कैंडिनेवियंस, रोवर्स. ये सब कुछ ट्राइब्स थी जो इस दौरान प्रेजेंट थी. इनके बीच में मिक्सिंग एंड मर्जिंग हुआ. दे केम, वन ट्राइब डोमिनेटेड, वन ट्राइब प्रीसीडेड द अदर और सक्सीडेड द अदर. लेकिन इस दौरान को, इस पीरियड को हम एंग्लो सेक्शन एज की तरह जानते हैं, क्योंकि देयर वर टू डोमिनेंट ट्राइब्स, एंजल्स एंड सेक्शंस. अब बात कर लेते हैं इस टाइम की लिटरेचर की. इस टाइम का जो लिटरेचर था दैट वाज इन ओरल फॉर्म, जिसे ओरल फॉर्म में एक किंग या एक स्कोप उस वक्त जो थे, वो वहां का जो हेड होता था, ट्राइब्समैन का जो हेड होता था, ही ऑलवेज हैड अ बार्ड और अ स्कोप बाय हिज साइड, SCOP, बार्ड और अ स्कोप उनके पास होता था. दैट पर्सन यूज्ड टू एंटरटेन हिज मास्टर यूजिंग सॉन्ग्स, यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ पोएट्रीज. सो पोएट्री जो थी इस दौरान की लिटरेचर को हम मानते हैं दैट वाज एन पोएटिकल लैंग्वेज. एलिट्रेशन में होता था, रेपिटेशन ऑफ लाइंस होता था. सो कुछ पोम्स जो इस टाइम की नोन है, दे आर रिटन बाय साइनवुल्फ एंड कैडेमॉन. और इस वक्त का एक ओल्ड जर्मैनिक हम एपिक भी मानते हैं, जो इस वक्त का एक इंपॉर्टेंट एपिक है, दैट इज बीवुल्फ. This work is known as the first epic work of English literature. Beowulf एक एडवेंचर स्टोरी है that deals with the chief character Beowulf and his fight with three monsters, Grendel's mother and other family members. So Anglo-Saxon age, basically it's an age, old English age, dealing with two dominant tribes, Angles and Saxons. इस दौरान जो है Angles डोमिनेंट ट्राइब थे जो कि इंग्लैंड से थे, जिनकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी. एंड आफ्टर एंग्लो सेक्शंस, जब हम बेटा अपने ऑफलाइन क्लास में या फॉर दैट मैटर पेड ऑनलाइन क्लास में बात करते हैं, तो वी टेक अप टू 2-3 days in knowing the base, because Anglo-Saxon age forms the very base of our English literature. ये हमारी English literature का base है, and if the base is strong, the building will be held high, और काफी strong रहेगी. तो जिसकी वजह से Anglo-Saxon age पर हम 2 to 3 days devote करते हैं talking about the major
major social political factors, political factors that affected the literature. हम बेवुल्फ को डिस्कस करते हैं, हम उसके साथ साथ द सीफेरर को करते हैं, साइनेवुल्फ को करते हैं, वर्सिली, एक्सीटर, ये उस वक्त के वर्क्स हैं. लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी रिलीजन के रिगार्डिंग. इस दौरान एंग्लो-सैक्सन एज के टाइम क्रिश्चियनिटी वॉज नॉट देयर, क्रिश्चियनिटी वॉज टू एमर्ज. सो उस वक्त के रिलीजन को हम क्या कहते हैं? पैगन रिलीजन. पैगन रिलीजन का मीनिंग है कण कण में भगवान. यू सी सन एज गॉड, यू सी समर एज गॉड. तो जब आप हर चीज को गॉडली वे से देखते हैं, यू एसोसिएट योर रिलीजियस बेंडिंग्स विद द नेचर, बिकॉज पीपल एसेंशियली लिव्ड amidst nature during that time. So pagan religion was there. Beowulf हमारा first old English Germanic एक हमारा epic poem है, and उसके साथ we have writers like Cynewulf, Cademon, Alfred प्रोज लिखते थे. सो ही वाज नोन एज इंग्लैंड्स डार्लिंग. तो इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं मेथोडोलॉजिकली हमारी क्लासेस में. बट क्योंकि दिस वीडियो will surely help in helping you to know the chronology of history of English literature. So the first marker that I am pointing here is the Anglo-Saxon age 450 to 1066. लेकिन जब हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं तो we discuss the important years 450, 650, 850 and 1066. हम सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड एज. सेकेंड एज इज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड. जैसे इंग्लैंड या इंग्लैंड उस वक्त एक नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी अटेन कर रहा था. ड्यूरिंग दैट टाइम विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी भी एक फ्रेंच, नॉर्मन्स भी एक फ्रेंच ट्राइब हैं जो कि नॉर्मैंडी में रहते थे, दैट्स इन फ्रांस. सो फ्रेंच पीपल, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये हमारे इंग्लैंड के पीपल हैं, ये हमारे फ्रेंच के पीपल हैं. दीज पीपल, देयर लॉर्ड द ड्यूक William the Duke of Normandy, William Duke of Normandy, in 1066 became the King of England. That is why it is known as the Anglo-Norman age, from 1066 up till 1340. So Anglo-Norman period forms another very important aspect when we talk about history of English literature. Why? Because अब तक English establish हुआ था. English के साथ साथ हमारे पास हमने एक एंजल्स नाम की ट्राइब को एक डोमिनेंट ट्राइब बना करके बाकी सब ट्राइब्स इसी में ही आ जाती थी. अब एक न्यू ट्राइब, एक नॉर्मन ट्राइब आ चुकी है, फ्रेंच. That means the mingling and the merging of English and French language. अब English language में French language के words add होंगे. French king आएगा. But when he became the king after he won Battle of Hastings, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब हम अपनी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, अपने फॉर्म, अपने बेस को हम कॉन्क्रीट रखते हैं ताकि आगे आने वाली एजेस को हम भूले ना. वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 to 1066. We have the Anglo-Saxon period, and after 1066 to 1340 we have the Anglo-Norman period. Norman gets its name from William Duke of Normandy, who invaded England and won the Battle of Hastings in 1006. It's a PYQ, बहुत बार पूछा गया है. Battle of Hastings. Battle of Hastings is the name of a place जहाँ पर battle हुआ. 1066 में William Duke of Normandy won and became the King of England. But the conqueror was soon conquered. वो आए और यहाँ पर जीत लिए गए. He was so happy to be the King of England that
ही प्रमोटेड इक्वालिटी, नेशनैलिटी। यहाँ पर आकर के उन्होंने फ्रेंच कस्टम्स को ज़रूर स्टार्ट किया, फ्रेंच लैंग्वेज को ज़रूर स्टार्ट किया, लेकिन इंग्लिश उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रही। ही वॉज सो सेटिस्फाइड इन बीइंग द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो जब हम एंग्लो नॉर्मन की बात करते हैं तो हम हैरल्ड गुडविनसन की बात करते हैं, हैरल्ड हराडा की बात करते हैं। वॉर कैसे हुई, किसने किसको हिट किया, क्यों किया, किल किया, किंग क्यों बने, तो ये सब बातें हम डिटेल में करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम नटशेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी हैव 450 to 1066 and then 1066 to 1340, that is the Anglo-Norman period. And after Anglo-Norman period हमारी हिस्ट्री, हमारी इंग्लिश लिटरेचर यहां से स्टार्ट होती है, जिसकी बात मैं अब करने वाली हूं इन अंडर द सेक्शन एज ऑफ चौसर। Age of Chaucer from 1340 to 1400. Geoffrey Chaucer, we have Geoffrey Chaucer. अब इस वीडियो का बेनिफिट आप लोग कैसे उठा सकते हैं? By keeping in mind the ages that I am marking. जिन ages को, जिन particular years को मैं mark कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा important है to help you know the story. अभी हम क्या learn करेंगे? Old English period, भाई 450 to 1066, Anglo-Norman 1066 to 1340, Age of Chaucer 1340 to 1400. अब who is this person Geoffrey Chaucer? Geoffrey Chaucer, जो स्टूडेंट्स नए हैं हिस्ट्री की क्लास में, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में, नेट की क्लास में, मैं उन्हें बताना चाहूंगी, Geoffrey Chaucer is the father of English literature. He is the father of English language, जिन्होंने मिडल इंग्लिश डायलेक्ट से इंग्लिश को एक नेशनलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर लाया अपने वर्क्स कैंटरबरी टेल्स से। कैंटरबरी टेल्स कितना इजी और इजी नेम लग रहा है सुनने में। इस एक वर्क को कंप्लीट करने में वी माइट टेक अप टू 1 वीक लग जाता है, सिर्फ इस एक वर्क को कंप्लीट करने में। दैट्स अ जायंट ऑफ अ वर्क, बहुत बड़ा वर्क है। वी हैव 31 कैरेक्टर्स, पिलग्रिम्स हु आर गोइंग टू द श्राइन ऑफ कैंटरबरी जा रहे हैं और रास्ते में दे आर डिस्कसिंग द टेल्स, very important work. And also this work is divided into the prologue and then we have the tales and so many things. So Geoffrey Chaucer का जो टाइम है वो इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक इंग्लिश आइडेंटिटी मिलती है। इस दौरान हमें एक इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश आइडेंटिटी एंड इंग्लिश नेशनलिज्म भी मिलता है। ड्यूरिंग दिस टाइम इंग्लैंड वाज इन डिस्कॉर्ड विद फ्रांस, दैट लेड टू द 100th-year war, another important year 1337 to 1453 है हमारी 100th-year war, very important war 1337 to 4. The times of Chaucer might seem like very fruitful when I talk about English language, but at the same time the social political background of age of Chaucer is tumultuous, बहुत ज़्यादा troublesome है। 100th-year war है हमारे पास, we have 1348 Black Death, Yersinia pestis, पेस्ट की वजह से Black Death हो रही है, bubonic plagues हो रहे हैं, and after 1348 we have the religious reformation, Lollards movements, 1/3 of the population is dying away and people are questioning, is there any God? जो सब हम चर्च में जाते थे पार्डन्स लेने के लिए, माफीनामा लेने, माफीनामा ले करके जाते थे, माफीनामा ले करके आते थे, तो ये सब क्या है? Why all the people, why 1/3 of the population is sweeping away just like that? So जब हम बात करते हैं एज ऑफ चौसर की 1340 to 1400, हमारे पास इंग्लिश हमारी लैंग्वेज आ चुकी है। जॉफ्रे चौसर इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल, क्योंकि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट फुल फ्लेजेड इंग्लिश, इन्होंने लिखा है। बट इनके साथ साथ वी हैव जॉन गोवर, वी हैव विलियम लैंगलैंड ऑल्सो, एंड सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिना एक राइटर को आप ड्यू क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। सो ही इज truly the writer of his age. Age of Chaucer
Very important, 1340 to 1400, Hundred Year War, Black Death, Religious Reformation, Lawless movements, Peasants Revolt, जो सब हो सकता था वो इस एज में है। इंग्लिश का कंप्लीट, इंग्लैंड का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इंग्लिश हमारी कोर्ट की लैंग्वेज बनती है, पार्लियामेंट की लैंग्वेज बनती है। सबके ईयर्स हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लिटरेचर इज समथिंग दैट इज अ मिरर। द मोमेंट वी टेक एडमिशन इन बीए इंग्लिश ऑनर्स और वी टेक इंग्लिश एज अ major subject, even for that matter in 10th or 12th class, we get to know this thing that literature mirrors society. If you are a student of literature, you must be very proud, क्योंकि here and there आपको कुछ ना कुछ सब पता है। आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, सोशियोलॉजी के बारे में आप नॉलेजेबल हैं, आप उसके साथ साथ कंप्लीट हिस्ट्री जानते हैं। तो ये सब बेनिफिट हमें वर्क से मिलता है, क्योंकि राइटर सोसाइटी से निकल कर आता है तो ही मिरर्स सोसाइटी, वो सोसाइटी का आईना लेकर के ही आता है। उनके वर्क्स में आपको उस दौरान की झलक मिलती है जिस दौरान वो वर्क लिखा गया है या जिस दौरान वो राइटर लिख रहा था। सो एज ऑफ चौसर, चौसर मिरर्स ईच एंड एवरीथिंग, ही इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर। एंड आफ्टर एज ऑफ चौसर, चौसर के बाद वी हैव एज ऑफ डार्कनेस, फोर्थ एज ऑफ डार्कनेस, age of darkness from 1400 to 1550। सोसाइटी में बेटा अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलते रहते हैं। सो दिस एज, एज अ टाइटल ऑफ इट सजेस्ट, वॉर्स अभी खत्म ही नहीं हुए थे कि दूसरे वॉर स्टार्ट हो गए। 100 ईयर वॉर में इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में जो 100 ईयर वॉर हुआ था, इंग्लैंड वॉज अंडर ह्यूज डेट्स था, लेकिन उस दौरान वॉर ऑफ रोजेस भी हुआ, उसके साथ हमारा जैक केज का केज रिबेलियन भी हुआ। तो ये सब चीजें, एज ऑफ डार्कनेस, हमने ये टाइटल किसे दिया है? हमने ये टाइटल लिटरेचर को दिया है, क्योंकि चौसर के टाइम पर जो लिटरेचर लिखा जा रहा था दैट वाज क्रिएटिव, दैट वाज ओरिजिनल। लेकिन डार्कनेस की एज को हम टू मेथोडोलॉजी से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑफ डार्कनेस रेफर्स टू द डार्कनेस, द आर्टिफिशियलिटी, द इमिटेशन दैट वाज देयर इन लिटरेचर। लिटरेचर में ओरिजिनल राइटिंग्स नहीं थी, मेयर कॉपी था चौसर का। इस दौरान हमें स्कॉटिश चौसरियंस मिलते हैं, इंग्लिश चौसरियंस मिलते हैं, साथ साथ बैकग्राउंड में वॉर ऑफ रोजेस चल रहा है। वॉर ऑफ रोजेस का क्या मीनिंग है? रोजेस की वॉर? नो, इट डील्स विद द वॉर ऑफ द नोबल हाउसेस, जो बड़े घराने थे। वी हैव द यॉर्क्सिस्ट, वी हैव द लैंकास्टर्स, उनके बीच में फाइट चल रहा है। यॉर्क्सिस्ट एंड लैंकास्टर्स, कैस्टर्स के बीच में। तो इन्हें भी बोला गया है, ये व्हाइट रोज को सिंबलाइज करते हैं, ये रेड रोज को सिंबलाइज करते हैं। तो दोनों राजघरानों के बीच में जो है वो वॉर चल रहा था। एज ऑफ डार्कनेस में जो हमारी लिटरेचर है वो बात करती है, स्कॉटिश चौसरियंस है, इमिटेशन है चौसर की ही राइटिंग का, इंग्लिश चौसरियंस है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लैंग्वेज का जब अगर मैं बात करना चाहूँ तो लैंग्वेज में बहुत फ्रूटफुल चेंज आए हैं। हमारे पास एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट के साथ हमारा प्रोज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब तक हमने बात की है ओल्ड इंग्लिश पीरियड फ्रॉम 1450 टू 1066, फ्रॉम 1066 टू 1340 वी हैव द एंग्लो नॉर्मन पीरियड फ्रॉम 1340 टू 1500, फ्रॉम 1340 टू 1400 वी हैव एज ऑफ चौसर who is a representative writer of English literature, and from 1400 to 1550 we have age of darkness, जिसमें age of darkness में war of roses है, we have Cade's rebellion, we have many writers also, but those writers, those poets are primarily the imitators of the preceding writer Geoffrey
Chaucer. Now come to the fifth age. Because history को complete works के साथ deal करने में हमें months and years लग जाते हैं. So this video is very handy for those people जिन्हें years first of all याद रखने हैं, क्योंकि हमारा chronology हमारी story का, हमारी history का base है. तो ये जो chronology की बात हम कर रहे हैं, ये chronology हमारे लिए इस वीडियो में बहुत हैंडी अवेलेबल है. आप पेन एंड पेपर साथ लेकर के बैठिए. हम बर्ड आई व्यू से बात कर रहे हैं. बर्ड आई व्यू से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एज, एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट 1. पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का. सो एज ऑफ डार्कनेस. नाउ कम टू द फिफ्थ एज, द गोल्डन एज, एज ऑफ एलिजाबेथ. Age of Elizabeth. It runs from 1558 to 1603. 1603. This age is known as the golden age of English literature because of this very lady, Queen Elizabeth. Ascended the throne, and she was everybody's favorite. She was a virgin queen who dedicated her complete life to England. England की growth के लिए, England की development के लिए, she gave her complete life. She was a virgin queen. She did not marry. She completely dedicated her priorities to the very growth and development of her beloved nation, इंग्लैंड. इनके टाइम पर स्पेनिश अर्माडा हुआ, इनके टाइम पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, और इनके एज ऑफ डार्कनेस पे मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दैट टाइम ही प्रिंटिंग प्रेस आया था. तो लिटरेचर को एक जरूरी पुश होता है वो प्रिंटिंग प्रेस से मिला था, जो कि एज ऑफ डार्कनेस में ही आया था. एंड उस वक्त ही द कैंटरबरी टेल्स भी पब्लिश हुआ था. तो जो हमारा यहाँ पर विलियम कैक्सटन है, वो लेकर के आए थे प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में इन द एज ऑफ डार्कनेस. जो प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, उससे लिटरेचर को बहुत विविड ग्रोथ, बहुत आर्डेंट ग्रोथ मिला. So, age of Elizabeth deals with the age of Queen Elizabeth, the Golden Queen. इसके इनकी एज के दौरान ही कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट बूम हुआ है. लिटरली इस जो एज को हम मानते हैं, इसको हम एक गोल्डन एज मानते हैं. वो इसीलिए क्योंकि फ्रॉम एवरी कॉर्नर इंग्लैंड वाज ग्रोइंग. जो कि कॉलोनाइजेशन हमें क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है, उसका रूट क्वीन एलिजाबेथ ने रखा था. इन्हें डिवाइन पावर, एक गॉडली पावर की तरह देखा जाता था कि देयर इज समथिंग डिवाइन इन दिस गोल्डन लेडी. और इस दौरान की लिटरेचर वाज इक्वली गोल्डन. आई टेल यू, वी हैव द मास्टर नेम, जो कि बच्चा बच्चा जानता है. वी हैव विलियम शेक्सपियर, एंड द मेन genre is that there were mainly two types of literature during Queen Elizabeth's time. First is drama, second is poetry. In my previous video uploaded on my channel, आप ड्रामा का complete birth and growth देख सकते हैं. The videos are already available on my YouTube channel talking about the birth and growth of drama. में भी हमने 2 parts को launch किया है. तो isn't it a very good thing कि साथ के साथ ही आप जाइए and go view that video, and subscribe button is just near you. Don't waste time, क्योंकि we are going to kickstart our journey talking about history, talking about the major works, major authors really very soon. And this is just the introductory or a demo class, you must say, you can say. So drama and poetry, we have William Shakespeare, we have sonnets, we have Spenser, we have Sidney. जो भी golden, better, beautiful, lovable, admirable, adorable हो सकता है, वो सब इस एज में हुआ है. सो एज ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथन एज, इस एज को हम रेनेसां भी कहते हैं, बिकॉज
एवरीथिंग वॉज एट रीबर्थ हुआ है। एज ऑफ डार्कनेस के बाद जो रीबर्थ हुआ लिटरेचर का, सोसाइटी का, लर्निंग का, वो सब हमारा इस एज में हुआ है। वी हैव थॉमस मोर्स यूटोपिया आल्सो, वी हैव फ्रांसिस बेकन आल्सो हु वाज राइटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड को नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी, एक गोल्डन आइडेंटिटी, एक कंप्लीट कॉन्क्रीट आइडेंटिटी प्रोवाइड करी थी, जो इसके बाद की हमारी सेंचुरी है, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सेंचुरीज, द 17th and 18th century, बिकॉज आफ्टर एवरी डेकेड बेटा सब चेंज होने लगेगा। यहाँ पे तो सेंचुरीज में चेंज आ रहा है, हमारी नेक्स्ट एजेस जो फॉलोइंग एजेस हैं अप टिल रेस्टोरेशन, things will change after decade. We'll have the first king who will be beheaded. Queen Elizabeth tak everything is like butter, like a cakewalk. Obviously it was not cakewalk for people living during that time, and the religion that was Christianity complete acquire कर चुका था हमारा religion section. So after that we have Jacobean age. Jacobean age, अब तक सब कुछ इंग्लिश चल रहा था, इंग्लिश ब्लड, इंग्लिश कलर एंड इंग्लिश किंग्स। नाउ वी हैव द स्टुअर्ट डायनेस्टी। वॉर ऑफ रोजेस में we have in the war of roses we had Lancasters, we had Yorkists, and that when that war got over we had Queen Elizabeth, daughter of King Henry, and she started the Tudor dynasty, and Tudor dynasty, Tudor household developed, Tudor घराना establish हुआ। Just after Tudor dynasty we had the Stuart dynasty, because Queen Elizabeth had no heir, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। So King James VI of Scotland, a Stuart king, came to England and became the king of both England and Scotland. We have Jacobean age from 1603 to 1625. This age is just an extension of the golden age. King James I respected the ideals of Queen Elizabeth. The way she ruled, he also ruled that way. But people were frowning. And why they were frowning? How come a Stuart king become our king? वो यहाँ पर rule कैसे करेगा? People did not associate directly with him. So after King James I, but King James I का rule, King James VI of Scotland became King James I of England. So King James I के time पर we have the official बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था। तो इनके टाइम पर भी कुछ रिमार्केबल चीजें हुई थी जिन्हें हम लेट डाउन नहीं कर सकते हैं। प्रोज का एक्सटेंशन चला था। वी हैड फ्रांसिस बेकन आल्सो, जिनके वर्क्स थे द न्यू अटलांटिक, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, तो जो इस दौरान पब्लिश हुए थे, एंड दे आर वेरी commendable. तो King James I के साथ people associated, try to associate, but there was this sort of discord that he is a Stuart king, he is a Scottish king, and because King James I, after King James I, इनके son आए जिन्हें हम बोलते हैं कैरोलाइन एज। बट बेटा किंग जेम्स वन के टाइम पर वो फ्राउनिंग की बात जो मैंने कही है वो तो एप्लीकेबल है। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग जेम्स वन was of the belief that kings are basically the viceroys of God. Kings are the people जिन्हें God ने खुद select किया है. They are the representative of God. They don't need any parliament. They don't need any suggestion. They can spend the way they want to. So King James I was of this ideology. He did not pay any heed, any importance to the cause and concern of his काउंसलर्स, ऑफ हिज पार्लियामेंटेरियंस। तो वो थोड़ा सा डिस्कॉर्ड एक यहाँ पर भी आ रहा था। ही बिलीव दैट वट एवर मनी ही इज गेटिंग दैट शुड कम डायरेक्टली इन हिज पॉकेट एंड शुड स्टे देयर एंड शुड सर्व हिज लेविश पर्पस ओनली। और इनका जैसे कहते हैं कि द सन इज द फादर ऑफ द मैन, तो वही ही केस यहाँ पर हुआ है। जो हमारे किंग चार्ल्स वन है, चार्ल्स वन को के इनके किंग जेम्स वन के जो बेटे हैं,
किंग जेम्स वन के जो बेटे हैं चार्ल्स वन, इनकी एज को हम कैरोलियन एज कहते हैं, जो कि है 1625 to 1649. वी हैव टू बी वेरी मच एक्यूरेट ऑल्सो, तो इसीलिए हमें पेपर एंड बुक अपने साथ रखना पड़ता है, तो क्योंकि ईयर्स में वी कैन नॉट मेस, स्पेशली व्हेन हाफ ऑफ द पेपर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम chronology, वी कैन नॉट टेक रिस्क. 1625 to 1649 we have King Charles I, equally lavish king था. He hoarded money, he spended money very lavishly, as a result of which the discord, rather than the discord between the parliamentarians and the king's men, खत्म होने की बजाय discord बढ़ता गया, and that led to, and King Charles I जो है, जो कि एक लेविश किंग होने के साथ साथ he had so many mistresses also and no legitimate heir. नो लेजिटिमेट एयर नहीं, वो हम किंग चार्ल्स टू के बारे में बात करेंगे. सो किंग चार्ल्स वन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच beheaded, King Charles I was beheaded publicly. The discord was so strengthened. अब लिटरेचर इस दौरान की कैसी है? लिटरेचर भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. कुछ जो किंग्स को फॉलो करते हैं जैसे कि कवेलियर्स, और कुछ जो पार्लियामेंट को फॉलो करते हैं. पार्लियामेंटेरियंस को हम राउंड हेड्स भी कहते हैं. तो यहाँ पर इस दौरान की जो लिटरेचर है उसमें हमें कुछ किंग के फॉलोअर्स मिलते हैं, कुछ पार्लियामेंट के फॉलोअर्स मिलते हैं. तो यहाँ पर एक जॉनरा स्टार्ट होने वाला है सटायर, क्योंकि so much immorality was present during King Charles I's time, as a result of which ड्रामा जो कि अपनी कंप्लीट हाइट अटेन कर चुका था 1642 में, theaters, very important year 1642, before King Charles I was beheaded by the followers of Oliver Cromwell, this theaters were closed. That is why shutting off the most important literary genre, people were, not only the discord was there between, it seems very easy, बहुत easy लग रहा है ना सुनने में, that there was a discord between parliamentarians and people, courtly people. लेकिन जब हम अपने complete lectures में बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि actual reality क्या थी, क्या factors थे जिसकी वजह से beheading हुआ, क्या factors था जिसकी वजह से theaters को close किया गया. And when Charles I became the first king to be beheaded, इंग्लैंड में मोनार्की ही completely over हो गया, because his son Charles II fled to France and Charles I, यहाँ पर religion को लेकर भी problem था. Charles I and James I, they were Protestants, and church में भी division आने लगे. We had Anglican church, we have Roman Catholic church, and so much was going on during that time. अब last age जो इस वीडियो में मैं बात करूंगी वो है Restoration age. Restoration किसका हुआ? After that we have the Puritan and Interregnum. Because it is not easy for me to complete each and everything in one single video, I will definitely come up with a part 2 taking ahead from this year. इस year के बाद की बात हम अपनी next video में करेंगे in the part 2. This is the part 1 of history of English literature, because there is so much to grasp. आप मेरा एक suggestion मानिएगा, जो years मैंने यहाँ पर लिखे हैं, चाहे वो bird eye view से ही explain कर लिखे हैं, please keep them well noted in your notes. जब आप नेट की preparation start करें, किसी भी English literature के exam की preparation start करें, the very first page of your notebook should be filled with the ages of history of English literature. अगर आप चाहते हैं specifically किसी age के बारे में मैं एक lecture devote करूं, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं. I would definitely love to help you people, because my aim is to complete history online on this platform only. So this was my first attempt at history of English literature in a nutshell way, and part 2 is awaited. That will be surely out very soon. And with that,
क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे. दिस इज द बर्ड आई व्यू विद विच वी आर गोइंग टू व्यू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन टू पार्ट्स. इन टू पार्ट्स में हम बात करेंगे एंड उसके बाद वी विल बिगिन आवर जर्नी राइट फ्रॉम एज ऑफ Chaucer. Thank you. Have a nice day. If you like the way I teach, you can contact me for my paid classes as well. To inquire about the paid classes as well that are going to commence really soon. Thank you. Have a nice day.